Dear students, in coming section we are going to discuss the application of the relative motion in river boat problem in one dimension. Let us consider one situation. Here the velocity of the river water current is u. That is, velocity of the water flowing is u. This is with respect to ground. And velocity of the boat with respect to water, let us consider this value as v. और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, दैट इज मैन इज रोइंग इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन मीन्स along the direction of the river flow. So let us consider case number 1, man is rowing in the downstream direction. Okay, because it is the case of the one dimension motion, and in one dimension motion we should consider the direction first कि किस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं. So let us consider rightward direction as positive. अगर हम लोग rightward डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहे हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, let us write the velocity of the river water current with the suffix vw equal to u. That is vw equal to u with a positive sign, because rightward direction we have considered as positive. Now we can write velocity of the man with respect to water, or you can say velocity of the boat with respect to water, that is equal to v. It is also positive. Now we can write a vector equation. Suppose we want to find the velocity of the man with respect to ground, then vector equation will be equal to velocity of the man should be equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water. So let us write this vector equation, and this is equal to v plus u. That means if man is moving or man is rowing in the downstream direction, the velocity of the boat with respect to ground equal to v plus u. Now let us consider case number 2. In this case man is rowing in the upstream direction. Upstream direction का मतलब है opposite to direction of the river flow. रिवर फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है. यहां पे भी हम लोग सेम साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहे हैं, दैट इज राइटवर्ड डायरेक्शन वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव. सो वी कैन राइट velocity of the water current, that is same as the previous case, that is vw equal to u. Correct? Now man is moving in the direction opposite to the our positive assumed direction, because in the left direction is negative, so we can write velocity of the man with respect to water with the negative sign, that should be equal to minus v. Now with respect to ground, what we can do, we can write again the vector equation, that is the velocity of the man equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water. Let us substitute these value with the proper sign. This is minus v and this is u, so this is u minus v, right? Now let us take one illustration, और उस illustration के through हम लोग इस concept को apply करते हैं. तो suppose एक illustration हम लोग लेते हैं. In this illustration it is given a swimmer capable of swimming with velocity v relative to water jump in flowing river having velocity u. That means एक river current velocity u थी और एक person उसमें जंप कर गया, दैट इज स्विम करने लगा कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द मैन स्विम ए डिस्टेंस d इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. रिवर फ्लो की डायरेक्शन में उसने d डिस्टेंस कवर की, देन रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आ गया, राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी. हमें कंप्लीट जर्नी का टोटल टाइम कैलकुलेट करना है. तो हम लोग सबसे पहले, जैसा हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले या फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमें उसका रफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर लेना चाहिए. तो अब इस सिचुएशन को हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. फर्स्ट फॉर द डाउनस्ट्रीम, सेकेंड फॉर द अपस्ट्रीम केस. सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट डाउनस्ट्रीम केस. सपोज रिवर वेलोसिटी इज u और स्विमर सपोज यहाँ पे
here at this position, and it is given velocity of the swimmer with respect to water is v, and suppose you start from this position, this velocity is v. अब उसने डिस्टेंस कवर की डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में यहां तक, and this distance is d and time taken is t1. Now let us consider the upstream case. Same distance, return journey की बात करते हैं. Suppose start from this position, water के respect में चाहे वो upward हो या downward हो, relative velocity with respect to water will be constant, that is v. Magnitude will be same. So here the velocity is v, right? And suppose वो यहाँ पे पहुंच गया और time taken in this case is t2. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट केस की, दैट इज मैन इज स्विमिंग इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. ओके, अब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के पैरामीटर्स को हम लोग लिख लें. क्या क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर करंट. सपोज वी कंसीडर राइटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो दिस शुड बी इक्वल टू u विद द पॉजिटिव साइन, दिस. एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to water, it is again positive, right? This is again positive with v value. Now we can write again the vector equation which we have discussed. Velocity of the man equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water, this one. Now we can substitute these value here and here. This value is v and this value is u, so this is v plus u. And this distance is covered with a constant velocity. और अगर constant velocity है तो टाइम कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज d and velocity with respect to ground is v plus u. So this time t1 we can write t1 equal to d divided by v plus u. This is the time for the downstream journey. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे upstream journey की. That is man is swimming in the upstream direction. Upstream direction जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, opposite to the direction of the river flow. यहाँ पे भी हम लोग rightward direction को positive ले लें. अगर rightward direction को positive लेंगे तो velocity of the water current will be same, that is with the positive sign u, velocity of the water. And now velocity of the swimmer, that is the velocity of the man with respect to water equal to vmw equal to minus v. क्योंकि इस केस में वो कहाँ जा रहा है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. नाउ वी कैन अगेन राइट द वेक्टर इक्वेशन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट the corresponding values here. Here this value is minus v and this is u, so this is minus v plus u. We can write u minus v. This is the velocity is also constant and displacement magnitude is d. That means time taken in this case, that is t2 equal to d divided by v minus u, right? Now we need to calculate the total time taken, that is the journey time, total journey time. So here we can write capital T equal to t1 plus t2. Now we can substitute the value of t1 as well as t2, that is t1 equal to d divided by u plus v and t2 equal to d divided by u minus v. Now we can solve for this and finally we will get the value, that is 2 du divided by u square minus v square. This is the total time taken in the complete journey, correct? Now let us move to the next illustration. In next illustration it is given a boat which moves with a velocity v relative to water. You can observe here this boat is moving with respect to water with velocity v in the upstream direction and velocity of the water current is u. At time t equal to 0, boat passes through a floating in water while moving in the upstream direction here.
at t equal to 0 this boat passes this float. बोट अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रही है वाटर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से, और फ्लोट वाटर में फ्लोट कर रहा है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लोट शुड बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, और t इक्वल टू 0 में ये इंसिडेंट होता है. एंड आफ्टर दिस बोट कंटिन्यू टू मूव इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन अप टू टाइम स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T. ओके, और इसके बाद उसने क्या किया, टर्न बैक किया, वापस हुई हियर एट टाइम कैपिटल T, और टर्न बैक होने के बाद इट कंटिन्यू मूव इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन अंटिल इट मीट द फ्लोट अगेन हियर लाइक दिस, और यहां पे ये फ्लोट से दोबारा मीट करती है. लेट दिस टाइम इज स्मॉल t. वी नीड टू फाइंड व्हेन डज बोट मीट द फ्लोट अगेन. हमें मालूम करना है ये बोट फ्लोट से दोबारा किस समय मीट करेगी. वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टू मेथड्स, one by using the ground frame approach and second from the water frame. So let us analyze this situation first by the ground frame. Ground frame से हमें analyze करना है, step by step चलते हैं. Let us consider the case when boat is moving in the upstream direction like this. You know, in one dimension motion we need to consider positive direction. Let us consider positive direction as rightward direction. ओके, तो राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी नेगेटिव. दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इक्वल टू v माइनस यू. दिस इज इक्वल टू v माइनस यू, राइट. और यहां से यहां तक अप स्ट्रीम डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया. ये डिस्टेंस हम लोग यहां कंसीडर कर लेते हैं. सपोज दिस डिस्टेंस इज x. That means this x should be equal to this velocity multiplied by time, because this time is capital T. Now consider the motion of the boat in the downstream direction. Downstream direction में boat ने यहां से चल के यहां तक पहुंचना है, right? That means the velocity of the boat with respect to water in this case should be equal to v plus u, because velocity of the boat with respect to water and velocity of the water both are in the rightward direction. So this is equal to v plus u, correct. Now this displacement from this position to this position, let us consider this displacement as y, right. Suppose हम लोग इस displacement को downstream direction के displacement को y ले लेते हैं, and we know this velocity is constant, that is equal to v plus u, and this time taken we don't know. हमें टाइम की वैल्यू मालूम नहीं है. हम लोग यहाँ पे कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. सपोज दिस टाइम टेकन इज t डैश. दैट मीन्स दिस y वैल्यू शुड बी इक्वल टू v प्लस u मल्टीप्लाइड बाई t डैश, राइट. t डैश इज द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर. अब यहाँ पे फ्लोट के बारे में सोचते हैं. Let us consider about the float. जिस टाइम में बोट ने from this position to this position and from this position to this position यहां तक ट्रेवल किया, उस ड्यूरेशन में फ्लोट का मोशन था यहां से यहां तक. तो टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द बोट इज कैपिटल T प्लस T डैश. दैट मीन्स टाइम ड्यूरेशन फॉर द मोशन ऑफ द फ्लोट को मूव करने का टाइम फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन हियर शुड बी इक्वल टू कैपिटल T प्लस T डैश, एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लोट इज u. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, लेट अस कंसीडर z. z शुड बी इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई T प्लस T डैश. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं. सिंपल डिस्प्लेसमेंट, वी नो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. दैट मीन्स y शुड बी इक्वल टू x प्लस z. सो लेट अस राइट दिस वैल्यू, y इक्वल टू x प्लस z. y की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है, z की वैल्यू मालूम है. वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. Okay, now we can solve.
टी डैश से मल्टीप्लाई किया टी से और यहाँ पे यू से, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं जैसे ये वाला टर्म भी। अब फाइनली हमारे पास बचा टर्म, क्या बचा हमारे पास, वी टी डैश इक्वल टू वी टी, वी एंड वी विल गेट कैंसिल, दैट मीन्स टी डैश इक्वल टू टी। दैट मीन्स द टाइम ऑफ रीचिंग एट दिस पोजिशन should be equal to t capital T plus capital T, that is 2t, that is required time should be equal to 2t. Now let us analyze this situation from river frame of reference or water frame of reference. Before analyzing this situation from water frame of reference, let us consider one important thing. We know velocity of the water is u, that is with respect to ground, and velocity of the float is also u. That means velocity of the float with respect to water is 0. It means float is always at rest with respect to water. Float water के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहेगा, लेकिन मैन या बोट वाटर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज v, वेदर इट इज मूविंग इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। लेट अस लर्न दिस सिचुएशन थ्रू दिस डायग्राम। सपोज एट दिस टाइम दिस बोट क्रॉसेस दिस फ्लोट, दिस टाइम इज t इक्वल टू 0, ओके, और फ्लोट वाटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और बोट की वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज v, राइट। फ्लोट रेस्ट में है, बोट ने इस टाइम में फ्लोट को क्रॉस किया अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, और कैपिटल टी टाइम तक वो मूव करती रही। कैपिटल टी टाइम में यहां पे इसने टर्न बैक किया, राइट। अब जितना टाइम इसे, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जितना टाइम इसे अपस्ट्रीम डायरेक्शन जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कवर करने में लगेगा। दैट मीन्स टाइम टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन शुड बी इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन up to here, right? That means if time is capital T for this journey, time for this journey should also be capital T. That means total time of the journey should be equal to 2t. अब इस सिचुएशन को एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक रेल रोड कार है, सपोज ट्रॉली है, एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। जैसे वाटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u थी, उसी तरीके से यहां पे ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u है। वहां पे बोट थी, यहां पे ये मैन है, मैन की वेलोसिटी इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में v है, और t इक्वल टू 0 में इस मैन ने इस ट्रॉली पे जब चल रहा था तो इस बॉक्स को क्रॉस किया और v वेलोसिटी से मूव करता रहा। सपोज यहां से वो इस एंड तक मूव कर गया, और ये टाइम हो गया कैपिटल टी, और इस टाइम के बाद वो रिटर्न बैक हुआ। तो आप समझ सकते हो कि जितना टाइम उसे यहां से यहां जाने में लगेगा उतने ही टाइम में वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लौट के आएगा, राइट। दैट मीन्स द जर्नी टाइम हियर शुड बी इक्वल टू 2t। और यही सिचुएशन में वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर फ्रेम में जब बोट को एनालाइज कर रहे थे, इसी सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी क्लियर फॉर यू, ओके। सो हियर वी लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ग्राउंड फ्रेम एंड वाटर फ्रेम मेथड, एंड फाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय वाटर फ्रेम मेथड और रिवर फ्रेम मेथड इज इजी। नाउ लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम ऑफ सेम कैटेगरी। A boat which move with the velocity v relative to water, बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में v है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द बोट passes through a float floating in water while moving downstream। जिस समय ये बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में
v वेलोसिटी से जो वाटर के रिस्पेक्ट में है मूव कर रही थी, t इक्वल टू 0 टाइम में इसने एक फ्लोट को क्रॉस किया। फ्लोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम होगी जो वाटर की है, दैट इज u, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब ये बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करती रही, ओके किस टाइम तक मूव करती रही? कैपिटल टी टाइम। दिस टाइम इज t इक्वल टू कैपिटल टी। और इस टाइम के बाद बोट बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज अप स्ट्रीम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, लाइक दिस। और इस टाइम में ये फ्लोट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इट रीच टू दिस पोजीशन। यू कैन से द बोट एंड फ्लोट मीट एट दिस पोजीशन। यहां पे बोट और फ्लोट मीट करते हैं। जितने टाइम में फ्लोट ने यहां से यहां तक का मोशन किया, उस ड्यूरेशन में बोट ने यहां से फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन एंड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, राइट। और यहां पे मीटिंग हुई और इस टाइम को हमें मालूम करना है। लेट अस कैलकुलेट दिस टाइम दैट इज t इक्वल टू व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम और वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है। हम लोग यहां पे डायग्रामेटिकली इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। वाटर के रिस्पेक्ट में फ्लोट इज एट रेस्ट, सो लेट अस मेक द पोजीशन ऑफ द फ्लोट एंड बोट एट दिस टाइम t इक्वल टू 0। ये रेस्ट में रहेगा, एनी टाइम इट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और यहां पे t इक्वल टू 0 में दिस बोट क्रॉसेस द फ्लोट विद वेलोसिटी v, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस बोट ने कंटिन्यू किया मूव करना, दिस टाइम इज कैपिटल T। और जब लौट के आएगी तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द बोट विल नॉट चेंज। तो जितना टाइम इसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में लगेगा। दैट इज दिस टाइम इज इक्वल टू दिस टाइम फ्रॉम हियर टू हियर इज t, दैट इज टोटल जर्नी टाइम शुड बी इक्वल टू 2t, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन बाय द वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जबकि अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते तो स्टेप्स ज्यादा हो जाती हैं, करेक्ट। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.